ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੋਲੀ ਪਲੇਸ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਦ ਆਗੂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋਸ਼ੀਲਾ ਖੂਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਬਾਲਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ ਦੇ 2 ਕੇਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ, 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਜਾ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ ਨੇ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਮਰੇਗਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਛੋਟਾ ਆੜਤੀਆ ਵੀ ਮਰੇਗਾ। ਗੱਲ ਕੀ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਤਹਈਆ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਨਾਲ ਰਲੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਜਕਾਰਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਥ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਗਲਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਸਮਾਨੀ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰੰਤੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਹਿਰਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ, ਅਪਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਦਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਫਤਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ।
उस वेले भावें औरंगजेब हसन अबदाल विच है, परंतु उहदा स्थापित कीता गवर्नर काफी खान जिहड़ा है, उहनूं खुश करन दे वास्ते वाह बबोहरा काजी है जिहड़ा फतवा सुनाउंदा है गुरु साहब और गुरु के 3 सिखां नूं शहीद करन दा फतवा सुनाउंदा है। उस लाल किले दे सामने सी, अज बाजार बन गए, इमारतां बन गईयां, लाल किले दे सामने ही चांदनी चौक पैंदी सी जिथे गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं शहीद किया गया सी। भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, असीं कहने लाल किले दा अपमान हो गया, वो कोई साडी हिस्टोरिकल प्लेस नहीं, असीं उहनूं कह लईए कि साडी होली प्लेस है, बिल्कुल नहीं। जे होवे ते फिर साडी सरकार नूं किराए ते देण दी की लोड़ सी, पर गलत प्रचार होया ते इस प्रचार तो डरदियां बहुते कहन लग पे साडा नहीं, फलाना भी साडा नहीं, ढिंगड़ा भी साडा नहीं। गुरमुखो जदों तुसीं होली सिटी जांदे हो, इत्थे गुरुद्वारा साहिब है गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दा, जिहदा नाम है गुरुद्वारा अदालत साहिब। तुसीं कई बार सुनिया होवेगा, शाही हुकूमत जिहड़ी वो भी शिकारगाह दे विच शिकार खेड रही है, इधरों गुरु हरगोबिंद साहिब अपने सिखां नाल, और सतगुरां दे सिखां ने बाज पकड़ लिया। कुछ कान के कहन लगे देखो सिखां ने बाज पकड़ लिया, गल माड़ी है, दूजे पासे हुकूमत है, हुकूमत दा जोर है, वो कुछ भी कर सकती है। गुरु हरगोबिंद साहिब दी अदालत सजी हुई है। कहन लगे सिखो जां जिहड़े होर बैठे सन सलाहां देण वाले कि अपने सिखां नूं कहो जी बाज दे दिओ, कहन लगे अजे ते बाज दी गल ही है, अजे तख्त ते ताज भी लेना है। ਇਹ नहीं सी कि उन्होंने मनोबल ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ ਸੀ। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किसी के मनोबल ਨੂੰ ਡੇਗਿਆ नहीं, सगों ਐਲਾनिया किया सी कि भय काहू को देत नहीं, नहीं भय मान त्यान, कहो नानक सुन रेमना ज्ञानी ताहे बखान। असल विच ज्ञानी पुरखो ही है जिहड़ा ना किसी तो डरदा है ते ना किसी नूं डराउंदा है। मैं बेनती कर देवां गुरमुखो, जे किते उदण साडे शहर दा आगू ये गल कह देंदे कि सरकार दा प्रबंध की है, ये सारा एक गिणी मिथी साजिश के मुताबिक होया है, तुसी कसूरवार हो। साडे नौजवान जिहड़े ने इन्हां दा खून जोशीला है ते जोशीला खून कई बार उबाला मार जांदा है, परंतु असी अपने नौजवानों तो सदके जाने आ, वारने जाने आ। इन्हां ने किसी रेहड़ी वाले दे 2 केले भी नहीं चुके, इन्हां ने किसी नूं मंदा चंगा भी नहीं बोलिया। ये तो साडे गभरूआं दी वडियाई है, शोभा है, उन्हां ने निशान चलाया ते वापस आ गए। जे किते असी उस दिन फैसला लै जांदे ते शायद अज ये लम्मा संघर्ष होर ना अगे तुरदा। अज भी लोड़ है, अज भी लोड़ है। ये नहीं मैं केवल तुहाडे कोल बेनती कर रहा है, पिछले दिन गुरुद्वारा मंजी साहिब दीवान हाल तो भी लाइव अर्ज की सी, गुरमुखो 2 चीज़ां जोश ते होश ये होने चाहिए। जिहड़े बजुर्ग हुंदे उन्हां कोल होश हुंदी है, उन्होंने बड़े संताप हंडाए हुंदे, बड़े तजर्बे हुंदे है। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਜਾਣ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਏਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ गुरु जिथे गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं, जेड़े उन्होंने साडे वास्ते पैड़ां पाईयां ने, उन्हां पैड़ां ते चलदियां होया चलो असीं दूजियां दा हक नहीं अपने हक वास्ते ते जूझण लई तैयार होईए ना। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी की मनाई हुई शताब्दी तां ही सार्थक है जे असीं उन्हां दे जीवन दे विचों कुछ सीख के अपने जीवन विच कमाईए। तां मान लो जे असी कानून रद्द नहीं करवा सकते, जे कानून रद्द नहीं करवा सकते असी ढिग्गी ढा लैंदे आ, की होवेगा। मैं प्रबंधकों के स्टेज ते आउण तो पहला 2 मिनट दे विच समाप्ति करदा। अज भी तुसी मेरे ख्याल आपां तकरीबन नैट सारे वरतदे आ, यूट्यूब ते जाके सर्च करके वेखियो जल युद्ध जां वाटर वार, सिर्फ इन्ना शब्द ही वरतना है क्योंकि जेडे CBSE पढ़ते हैं बच्चे, उन्होंने 10वीं की क्लास के भी एक चैप्टर पढ़िया होगा, 14 नंबर लैसन है, वाटर वार इंग्लिश की पुस्तक है, वो भी जिक्र है। ये वाटर वार की सी? एक दक्षिणी अमेरिका का
एक देश है जिहदा नाम है बोलविया। दक्षिणी अमेरिका का देश है जिहदा नाम है बोलविया। ਇਹਦਾ कोई समुंदर नहीं लगता, इहनूं विच एक नदी जाती है और इत्थों के जिहड़े बशिंदे ने रहन वाले ने वो 80% अपना पानी वरतते हैं। उन्हां दे अपने खूह ने, जो भी उन्हां दा प्रबंध होवेगा। 20% जिहड़ा है वो कारपोरेशन का पानी है, नगर निगम का। इत्थे बहुत लंबा समा सैनिक राज रहा, फौजी राज रहा। लोगों ने बड़ा लड़ घुल के अपने देश नूं आज़ाद करवाया। 1999 दे विच ये देश आज़ाद होया। जदों ये देश आज़ाद होया ना, इत्थे बहुत सारी गरीबी फैल गई, क्योंकि सैनिक राज सी, लड़दियां घुलदियां अर्थ व्यवस्था डिग पई। जदों 1999 विच देश आज़ाद होया ते सरकार नूं फिक्र लग गया कि साडी अर्थ व्यवस्था डिग पई है, साडा देश गरीब हो गया, हुण इहनूं तां किवें चुकना है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक नाल गल कीती। वर्ल्ड बैंक ने कहा तुसी कोई अपनी चीज़ गिरवी रख दिओ ते तुहाडी अर्थ व्यवस्था जिहड़ी ओह तां चुकी जावेगी। कहण लगे साडे कोल कुछ है नहीं, साडे कोल ते पानी है, वो भी 20%। कहंदे तुसी पानी वेच दिओ। उत्थों दी सरकार ने पानी वेच दिता है कारपोरेट घराणे नूं। कारपोरेट घराणे दी बहुत वड्डी कंपनी सी, उन्हां नूं पानी वेचता। हुण जदों उन्होंने पानी खरीद लिया, नगर निगम का जिहड़ा टूटियां 'च पानी आउंदा सी, हौली हौली उन्होंने खूह भी खरीदने शुरू कर लए। ज़्यादा पैसा मिलता सी ना, जिवें अज लालच दिता जाता है कि तुसीं फसल अपनी फलानी स्टेट 'च बेचोगे तुहानूं वध पैसा मिलेगा। मेरे ख्याल बहुत सारे बेसमझ किसानां ने भी काम कर लेना, पर उन्होंने पता नहीं होवेगा। पानी विक गया, लोग बड़े तड़फन लगे, पानी बड़ा महंगा हो गया। जिवें किसी दी मंथली आमदन जिहड़ी सी वो 5000 सी ते महीने विच उहनूं 2000 दा पानी पीना पैंदा सी। आमदन 5000 सी, पानी 2000 दा सी। लोग बड़े आतर हो गए। फिर उन्होंने नदियां तो पानी लियाउणा शुरू कर लिया, नदी तो लियाउण लग पे और कारपोरेट घराणियां ने सरकार द्वारा उन्हां ते मुकदमे दायर कराउणे शुरू करते कि असीं तुहाडे कोलों पानी खरीदिया है। जिवें आपां आम कहने ना कि पानी का फार्मूला H2O है, भावें वो पानी नलके का है, भावें वो नहर का है, भावें खूह का है, तो भावें बरसात का है। जे लोगों ने टोए पुट ले कि चलो असीं मींह का पानी इकट्ठा कर लांगे, उन्हां ते भी मुकदमे दायर होने शुरू हो गए। हालात बड़े माड़े हो गए। इत्थों तक लिखिया मिलता है कि जेड़े बोलविया देश के लोग सन, बोलविया देश का एक कोकोबामा, ये उन्हों का वड्डा शहर है उत्थों का, उत्थों की हालत जिहड़ी सी इन्नी माड़ी हो गई सी कि लोग नालियां दे उपर कपड़ा रख के पानी पुण पुण के पीण लग पे सी। इन्नी जलीलता भरी जिंदगी सी। फिर कुछ शहर आगू उठे, उन्होंने लोगों को समझाया, लामबंद किया ते 4 वड्डे प्रोटेस्ट होए। इन्हां 4 अंदोलनां विच हज़ारां जानां गईयां, पर वो लड़ते रहे अपने हक्कां वास्ते। ते ये जिहड़ा कानून सी, इहदा नाम सी 2029। इस कानून का नाम सी 2029। 2029 तक उन्होंने पानी वेचिया होया सी, पर उत्थों दे लोग लड़ते रहे एकमुठ होके ते 2000 दे विच जिहड़ा सी उन्होंने एक कानून रद्द करवा लिया सी। ये मैं तां बेनती कीती है, जदों असीं अपने हक लैणे होण ना, कोई सानूं थाली च परोस के नहीं दिंदा। तुसीं देख रहे हो किन्नियां मीटिंगां केंद्र सरकार ने कर लिया किसानां दियां, और हर बार मजाक ही उड़ाया जा रहा है। कानूनां ते कानून बनते जा रहे हैं, कई काले कानून बने और अजे कई होर बनने ने। अज सानू लोड़ है कि असीं सारे इकट्ठे होइए। बहुत सारे लोग खुश सन जदों 370 धारा कश्मीर की हटी, बड़े खुश सी, पर असीं उदों भी पारिया करते सी, सिखो इन्ने खुश ना हो, वारी तुहाडी आउण वाली जे, वारी तुहाडी आउण वाली जे। किवें वारी आउण वाली है? जिवें असीं पठानकोट की गल कर लीए, इधर दे जिहड़े जिले सी इन्हां नूं जम्मू रियासत नाल जोड़िया जा रहा सी, विचों विचों ते अमृतसर की खबर भी मिलती सी। इस तरह फाजिलका भोर राजस्थान दे नाल गल की पंजाब जिहड़ा है वो सरकार दीयां निगाह दे विच रड़क रहा है। पंजाबी जिहड़ी है कश्मीर चों बंद कर दी गई है, राजस्थान दे विचों भी शायद बंद कर दी गई है। आउण वाले दिनां दे विच शायद पंजाब दे विच पंजाबी तीजे नंबर ते आ जावेगी। एक नहीं है,
क्योंकि मैनू कोई हिचकिचाहट नहीं, मैं कहना हुन्ना मेरा किसी पोलीटिकल पार्टी नाल कोई वास्ता नहीं, मेरी सच्ची सरकार धन गुरु ग्रंथ साहिब है। मैं गुरु की हजूरी में बेनती कर रहा। कई बार साडे कुछ गुरमुख प्यारे कहते भाई साहब जी गुरु की हजूरी में बैठ के बद दुआवां ना दिया करो। वो इहनूं बद दुआ समझते हैं, ये नहीं समझते कि सानू सचेत किया जा रहा है। वो सगों इहनूं इंज समझते शायद सानू बद दुआ दी जा रही है कि दिन आ भी चंगे नहीं तो आउण वाले इहदे तो भी माड़े है। अज सानू लोड़ है सुचेत होने की, चाहे कोई रागी ढाडी ग्रंथी प्रचारक, भावें कोई दिहाड़ी करता है, भावें कोई किसानी करता है, भावें कोई नौकरी करता है, भावें कोई व्यापार करता है। गल की जेड़ा भी इंसान इंसानी जिगरा रखता है उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठियां होके अज इन्हां काले कानूनां नूं रद्द करवाउण वास्ते लामबंद होना पवेगा। और मैं बेनती करदा हां गुरु का आसरा ना छड्डिओ, बिरथी कदे ना होवी जानकी अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूर्ण गुण तास। जदों गुरु ते भरोसा रख लीए ना फिर गुरु साडे वल हो जाता है। फिर ताहे कहाँ परवाह काहू की, जाके बसीस धरियो गुर हथ। समझ लेना गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का 400 साला प्रकाश दिहाड़ा मनाया साडा सार्थक है। जे गुरु के बचनां अनुसारी होके असीं हक सच दे वास्ते अपनी जिंदगी नूं वरतदियां होया भै भावनी विच रहिंदियां होया आत्मक आनंद नूं माणदे हां। तां सो कोटानकोट धन्नवाद है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का।